Aldehydes and ketones are giving various type of chemical reactions, and what are the different type of chemical reactions given by the aldehydes and the ketones. So different types of chemical reactions, or we can say why the aldehydes and ketones are chemically reactive. So different type of chemical reactions of aldehydes and ketones. So the first reaction is, that is nucleophilic addition reaction. That is nucleophilic addition reaction. And then we are having the second one, that is reduction reaction. And the third one is oxidation reaction. These are the reactions given by the aldehydes as well as the ketones. And the next one is reaction due to alpha hydrogen, and one more is there, the reaction due to the absence of alpha hydrogen. So these are the various type of reactions given by the aldehydes and ketone. And जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसमें we are having the addition of hydrogen cyanide, then addition of sodium hydrogen sulfide, then addition of Grignard reagent, and we are having addition of alcohols. And one more thing is that addition of ammonia NH3 and ammonia derivative, that is NH2Z. Z हमारा कुछ भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोक्सिल भी हो सकता है, it is hydrazine also, and that is 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्razine भी हो सकता है. तो जैसे जैसे Z चेंज होता जाएगा we will get the imine, oxime, hydrazone, तो बहुत सारे हमें प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. तो इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड करेंगे तो हमें साइनोहाइड्रिन मिलेगा. अगर हम लोग यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, we are having here cyanohydrin, that is cyanohydrin. और यहाँ पे हम करते तो we are getting this sulfite adducts. Grignard reagent को ऐड करते तो we are getting the, यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो we are getting the alcohols. And अगर हम अल्कोहल को ऐड करते तो we are getting the esters और ketones, esters and ketones. And one more thing is that जब हम Grignard reagent को ऐड करेंगे तो aldehyde will give us the, क्या दे देंगे हमें, secondary, and ketone will give us the tertiary alcohols. And then oxidation reaction में अगर हम देखें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो रिएक्शन है दैट इज जो एल्डिहाइड है दे विल गिव डिफरेंट रिएक्शन एज कंपेयर टू दी कीटोन्स. तो यहाँ पे हम टाउलेंस रिएजेंट टेस्ट पढ़ेंगे.
Taulin's reagent reduction by the aldehydes, ketone इसको नहीं देते हैं. Then we are having the Fehling solution reduction. These test is only given by the aldehydes. And यहाँ पे जो aldehydes है, aldehydes चाहे वो aliphatic हो या aromatic हो, so what they are doing, they are giving the carboxylic acids of same number. ठीक है, एल्डिहाइड्स ऑक्सीडेशन करने पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स देंगे जिसमें जो कार्बन नंबर होंगे वो सेम रहेंगे, जबकि जो कीटोन्स है इट विल गिव अस द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड हैविंग द लेस नंबर ऑफ द कार्बन एज कंपेयर टू द पेरेंट्स. तो एंड साथ में जो कीटोन्स है उन्हें ऑक्सीडाइज करने के लिए वी रिक्वायर द विग्रस कंडीशंस. जो कीटोन्स है अंडर vigorous condition or we can say strong conditions, यहाँ पे हमें दो तरह के aldehydes मिलेंगे. यहाँ मैंने apostrophe लगाई है plus RCOOH. So we are getting the mixture of the aldehydes, carboxylic acids in case of the ketones. और reduction reaction में यहाँ पे जो aldehydes और ketones है, एल्डिहाइड और जो कीटोन्स है, they will reduce to either alcohols. अल्कोहल्स को रिड्यूस होंगे तो यहाँ पे जो हमारा कैटलिस्ट होगा दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर होगा हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. तो हम इसके साथ इसे अल्कोहल में रिड्यूस कर सकते हैं या फिर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को, तो हम यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन है तो हम लिखेंगे ही नहीं क्योंकि फिर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एल्डिहाइड है, तो ये अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएंगे इससे. और या फिर जो हमारे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स है दे विल रिड्यूस टू हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स को रिड्यूस कर सकते हैं. अगर हाइड्रोकार्बन को रिड्यूस करते वक्त वी आर टेकिंग जिंक एमेल्गम along with concentrated HCl, तो जो रिएक्शन है दैट इज दी कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लेमेंसन रिएक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन. ये क्लेमेंसन रिडक्शन हो जाएगा. और अगर जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है, थोड़ा सा हम इसे एलिब्रेट करने के लिए मैं इसको नेक्स्ट लिख देती हूँ. दैट इज जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं. और अगर हमारा जो यहाँ पे रिएजेंट है वो क्या रहेगा, हाइड्राजीन दैट इज NH2 along with that हम लोग यहाँ पे पहले से किस में ये रिएक्शन यहाँ पे रिवर्सिबल रहेगा और क्या यहाँ से रिएक्शन जो है दैट इज रिवर्सिबल रहेगा. दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा C and we are having NH2 and OH which further हम इसे किसके साथ कंबाइन करेंगे, इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ. इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH या फिर NaOH, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, वी आर गेटिंग दी CH2 प्लस N2. तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, दिस रिएक्शन इज नोन एज वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन. वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन. सो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे जो एल्डिहाइड्स हैं वो हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहे हैं, and then we are having oxidation reaction, then we are having the reduction reaction, then we are having the reaction due to the absence of alpha hydrogen. इसमें हमारे पास जो रिएक्शन है that is the Cannizzaro reaction, जिसे मैं एक एक करके नेक्स्ट एक्सप्लेन कर दूंगी. Cannizzaro
जेरोस रिएक्शन, एंड यहाँ पे एक और रिएक्शन है, दैट इज दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड वी यहाँ पे जो मैंने रिमूव किया था दैट इज दी रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, एंड उसमें क्या है, जो हमारा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है, दे आर इन द प्रेजेंस ऑफ किसी भी, हम इसको अगर बेस में रिएक्ट करते हैं तो वी आर गेटिंग दी एल्डोल एंड कीटोल, एल्डोल मिलेगा या कीटोल कंडेंसेशन, और हमें एक और रिएक्शन मिलेगा दैट इज दी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. So these all are the reaction given by the aldehydes and ketones. जो एल्डिहाइड कीटोन्स है वो ये सारे रिएक्शंस देते हैं, जिसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है. मेरे हर एक वीडियो में आपको ये अलग अलग रिएक्शन जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करके मिल जाएंगे. बट यहाँ पे हमने देखना कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं, उनके क्या नाम हैं, और वो रिएक्शन कहाँ पे आपको क्या देंगे. हर रिएक्शन के लिए इससे अलग से आपको एक जो मेरी वीडियोस है वो मिल जाएगी.